Now, what is Emerson's efficiency system? So under this system, minimum time wages are guaranteed. ठीक है, आप कितना भी आउटपुट करो, पर अगर आप उतने घंटे काम कर रहे हो तो वी आर गोइंग टू पे यू द मिनिमम टाइम के वॉट एवर द वेजेस विल बी. And if you are working beyond your efficiency, the efficiency has been fixed over here. So if you are working beyond the efficiency, you will be getting the bonus in addition to your minimum day wages. Suppose minimum day का wages मैंने decide किया कि ₹50 I will be giving to my worker. And अगर उसने मैंने जो efficiency के standard set किए, मतलब जो Emerson ने standard set किया है, उसके ऊपर अगर वो अपना efficiency दिखा रहा है तो he will also be paid as a bonus. ठीक है, so he will be paid bonus as well as a minimum time guaranteed wages he will be getting it up. ठीक है, so this is a addition of a two things. कौन से दो things? एक तो टाइम वेजेस भी मिलेगा, प्लस अगर एफिशिएंसी अच्छा दिखाया तो he will, the worker will be getting the bonus as well. Now see what is the efficiency का level which they have decided over here. So Emerson is telling that if you are working up to 66.67 percentage, class, one more thing which I want to tell you, ये वाली जो efficiency का percentage है ना, in certain sums they give the efficiency as a percentages, and a certain sums they don't give. You need to find it out the efficiency. So when we will be doing the sum, I will discuss how to find it out. Okay, so if the worker is working up to 66.67%, he will be given the time rate wages. ठीक है, मतलब अगर वो 5 hours काम कर रहा है, per day per hour I have fixed that I will be giving 30 rupees. So 5 hours का हो जाएगा 150 rupees. Like this way they will be calculating up. तो normal जो time rate है, जितना hours काम किया उतना पैसा मिलेगा. Next is if the worker is working above 66.67 but up to 100%, तो we are going to give the time rate. मतलब कितना 150 तो मिलना ही मिलना है, प्लस बोनस इंक्रीजेस ग्रेजुअली. जितना जितना ज्यादा 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 करते जाएगा उतना ज्यादा हम उसको बोनस भी देंगे. सो दिस मिनिमम वेट तो जो हम दे रहे हैं वो तो मिलना ही मिलना है. अपार्ट फ्रॉम दैट he also will be getting the bonus. And if he is working above 100%, so what he will be given? He will be given a time rate. ठीक है, मतलब मिनिमम जो उसका है वो तो मिलना ही मिलना है. 20% of the bonus, ठीक है, 20% of the bonus he will be getting on it, plus additional 1% of the bonus on each increase in the efficiency. जितने परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है एफिशिएंसी, उतना 1% of extra bonus he will be getting it up. So देखो, इसमें मतलब जो कम काम करेगा उनको तो फिक्स रेट मिलना ही मिलना है जितने आज काम करेंगे. अगर वो थोड़ा एफिशिएंसी और अच्छा दिखा रहा है तो अपार्ट फ्रॉम दिस ही विल बी गेटिंग द बोनस. एंड इफ यू शोइंग मोर ऑफ हिज एफिशिएंसी तो ही विल बी गेटिंग द मिनिमम टाइम रेट तो जो डिसाइडेड है वो ही, प्लस 20% ऑफ द बोनस, प्लस 1% ऑफ द एडिशनल बोनस, जितना उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी उतना. ठीक है, सो दिस वाज व्हिच प्लान? दिस वाज अ Emerson's efficiency system. Now next, हमने ये क्या था? Gantus bonus plan? नहीं, fine. Now see, what is Gantus bonus plan method? So in this method na class, there is a combination of the three rates. That is, you are going to get a time rate, मतलब जितना आज के हिसाब से आज काम करोगे उतने 1 per hour के हिसाब से रेट मिलेगा. You will be getting the bonus as well as you will be getting a piece rate. ठीक है, मतलब जितना आउटपुट करोगे वो आउटपुट के ऊपर भी पैसा मिलेगा. नॉर्मल टाइम जितना आवर्स तुम लोग दे रहे हो वो उस पे भी मिलेगा, प्लस इफ योर एफिशिएंसी इज हायर, जो स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा अगर प्रोड्यूस करके दे रहे हो तो वी आर गोइंग टू गिव द बोनस. ये कौन कहता है? दिस इज बीन टोल्ड बाय अ गैंग टास्क. ठीक है, नाउ हियर दे हैव सेट वन स्टैंडर्ड. ठीक है, वन स्टैंडर्ड विल बी सेट एंड दैट स्टैंडर्ड विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. हमने जैसे अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन किया तो कैसे स्टैंडर्ड हमने सेटअप किया, 80 यूनिट्स वाज द स्टैंडर्ड. तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड विल बी गिवन एंड वी जस्ट हैव टू कंपेयर इट अप एंड वी हैव टू सी कि उसको कितना मिलना है. सो इफ द पर्सन इज प्रोड्यूसिंग बिलो द स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड है उससे कम अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो ही विल बी गिवन द मिनिमम, दैट इज गारंटीड टाइम रेट. ठीक है, हम उसको गारंटी जो भी टाइम रेट के हिसाब से जो भी है, मतलब ही इज वर्किंग फॉर से 7 hours और पर आवर इफ आई एम गिविंग 50 rupees, so 7 into 50 that is 350 rupees I am going to pay him.
ठीक है, मतलब पर आवर जो भी मैंने डिसाइड किया है उतना तो मुझे देना ही है, इवन इफ वर्किंग फॉर बिलो द स्टैंडर्ड। नाउ व्हाट इफ ही इज वर्किंग एट पार, जितना स्टैंडर्ड है, सपोज मैंने स्टैंडर्ड सेट करके रखा कि 50 यूनिट्स का आउटपुट मुझे चाहिए और वो वर्कर ने 50 यूनिट्स ही बनाया, तो प्रोडक्शन जो उसका था वो इक्वल टू द स्टैंडर्ड है, तो ही इज गिवन एज अ 120% ऑफ अ टाइम रेट। ठीक है, अब मैंने पर आवर कितना किया था, 50 रुपीज, 50 रुपीज का 20% कम्स टू हाउ मच क्लास? Yes, fast. Obviously 10 rupees. So now if he is working at par, so he will be given as a 60 rupees per hour. कैसे मिला? 50 का 20%. So 7 hours if he is working for, and the per hour अगर 60 rupees है, तो we are going to pay 420 rupees to him. And if the worker is producing above the standard, जो standard set है उससे ज्यादा produce कर रहा है, तो he will be given 120% और higher of the piece rate for the entire output. पूरे output का एक जो piece rate होगा वो उसको हम देने वाले हैं। तो देखो ये सिस्टम काफी अच्छा सिस्टम है, क्योंकि इसमें मिनिमम टाइम रेट, टाइम वेजेस तो मिल ही रहा है। ठीक है, अगर वो अपनी एफिशिएंसी भी कम दिखा रहा है तो उसको मिनिमम गारंटी टाइम तो मिल ही रहा है, टाइम रेट। देन इवन अगर वो थोड़ा सा अच्छा एफिशिएंसी दिखा रहा है तो उसको थोड़ा इस पे बोनस भी मिल रहा है। देखो 120% मीन्स 20% एक्स्ट्रा ही इज गेटिंग द बोनस एज वेल। ठीक है, एंड अगर वो 120% दिखा रहा है तो जो भी हमने पीस रेट डिसाइड किया होगा वी आर गोइंग टू गिव द पीस रेट एज वेल। So this method offers a reasonably good amount of incentives to your efficient workers. जो भी efficient workers है उनको अच्छे से मिल रहा है। तो मतलब यही एक ऐसा प्लान है जहां ये तीनों रेट्स को कंबाइन किया है, टाइम, बोनस एंड द पीस रेट।